जी, गुड मॉर्निंग मैम। तो भी किसी और ने आना है। अर्चना जी आ गए, शुभांगी जी आ गए, प्रीति जी आ गए। और कौन बचा? ऑलमोस्ट सभी आ गए। सॉरी, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, मैं वाज जस्ट काउंटिंग की शैल वी स्टार्ट। तो अच्छा, तो आज जो है हमारे साथ में चंद्रशेखर जी हैं बैंगलोर से। तो सर, आप एक दफे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ये हमारा ग्रुप है जो अभी लेवल 3 का लास्ट स्टेज है। अनदर 3-4 days वील कंप्लीट दी लेवल 3 क्लास एंड वील मूव ऑन टू लेवल 4। तो आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें तो बढ़िया है। Sure, sir. Namaste. Good evening to all. I am Chandrasekhar from Bangalore. I'm an engineer, but more now into spiritual activities like Reiki, acupressure, and also Vastu consultant. I take classes on Reiki, and there is also on Surya Upasana called Artha Vidya. I take and more interested into Vastu and mantras and other stuff. I got introduced through podcast. So something really kind of attracted me, pulled me. So नमस्ते सर। here now. Thank you. Thank you. ये चंद्रशेखर जी ने अपना वास्तु का जो कोर्स करा है वो करा है। सर, कौन सी सोसाइटी बता रहे थे आज आप? It's called as OMSNT, American University of Ionic Science and Technology. Um, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ मेयोनिक Ionic Science and Technology. मेयोनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Because they say that Vastu Shastras were first propounded by Mayasura, the father-in-law of Ravana. हाँ, Uh, मैं मेरठ में रहता हूँ। मेरठ का yes. नाम मयराष्ट्र है। Maharashtra, ओरिजिनल correct. नाम मयराष्ट्र है। तो वो मतलब बेसिकली मैं उसी जगह का रहने वाला हूँ जहाँ पर ये मायासुर का जो वो डोमेन कहा जाता है। Yeah, yes, sir. रावण की ससुराल में ही रहता हूँ। So that's how, because Vastu Shastra, there are many ways. Like some say it is like you say Mahavastu is there, some other Vastu is there. So when they were thinking of making a university, so they wanted to include what has been propounded by Mayasura, that has to be taught as a science and technology. So that's how the Myonic science and technology came into being. And American University, it came at OM. So OM SNT, that's why for omscience.com is the website of it. So that's how they are doing the classes. Almost 15 years, 20 years they have been doing the classes, online classes. So I did the masters also in that. It's more of construction, and remedies only related to few entras whom I got from some other person, and then planting the what do you say that jumps in particular fashion, and that in northeast. So they say on 8 days and then in Indian year, Vastu Purusha gets up, he awakens. Vastu Purusha day. That day, these jumps are put, ओके। and the invocation of the 53 devatas which are there inside the 81 mandala, 81 grid mandala. So their names are called and given the ablutions, the swahakaras are given, and then we pray for the prosperity, awakening all the devatas inside. That's how it goes. आउट ऑफ 81, 45 देवतास टू बी इन्वोक्ड। Yeah, 45 invoked will be there, 8 outside, 8 outside. राइट। तो वो वाला क्लास तो हम एक बार कर चुके थे। वी विल स्टिल डू इट अगेन। द Okay. गुड पार्ट इज कि चंद्रशेखर जी की वजह से हमारे को प्रैक्टिकल जो है वो वास्तु का दो एस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक जो इनके मॉडल के तौर पर हम वास्तु रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, और एक जो ये बीज मंत्र का अप्रोच वाला जो पार्ट है, तो उसमें जो है इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज ए ब्रिज कि हमारे पास दो दो चीजें आ जाएंगी। तो आप
ऑप्शन को इवैल्यूएट भी बेटर तरह से कर सकते हैं और उसकी रेमेडी और बेटर हो सकती है। एक सेकंड। सॉरी। तो तो मेरा आज सुबह ही पहली बार जो है, जब चंद्रशेखर जी से डिस्कशन चल रहा था, तो हमने वो सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे जो मेरे थ्योरी अप्रोच से और एक स्ट्रक्चर्ड थ्योरी के तौर पे जो वहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन में बताया जाता है उसके तौर पे, तो इट विल एक्ट एज अ ब्रिज। कि जब हम दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करते हैं और उसमें जो है इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि दो अप्रोचेस में कौन सा अप्रोच जो है आपको फास्ट एंड बेटर रिजल्ट देता है। तो जब हम एक आस्पेक्ट रिलेटेड chaos को क्लीन कर लेते हैं तो पूरा इंडस्ट्री सिस्टम ही क्लीन हो जाता है। तो दैट वे इट केम, मतलब इट सीम कि हाँ, मतलब जैसे नेचर अपने आप ही कुछ चीजों को कनेक्ट करने के लिए काम कर रही है। तो वो वाला पार्ट था। ठीक है। तो कल जो हमने उसका क्लास करा था परटेनिंग टू प्लवमान, उसका प्लवमान 2 मैंने अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने देखा था? तो बिकॉज ऑफ दैट प्लवमान 2 मेरे को, प्लवमान 2 मैंने डाल दिया था ना? तो सुबह जो मंत्र दिया था स्कैन करने के लिए। नहीं 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 नहीं, गलती हो गई मेरे से शायद। लेट मी चेक। एक सेकंड। तो आज सुबह मेरा वो चिन्मयी जी के साथ में क्लास चल रहा था और मैं उन्हें वो प्लवमान पूरा पढ़ा रहा था कि जो क्लास में कल हुआ था, और वो प्लवमान करते करते जो है वो प्लवमान 2 का पूरा स्टेज सेट हो गया। तो फिर वो बड़ा डिफरेंट सा पार्ट था, तो आई रियलाइज्ड कि पहले मैं इस पार्ट को ही एड्रेस कर लूं सो दैट कि सबको ये कल के हिसाब से आज का जो सिस्टम जो है उसका डिफरेंस पता चल जाए। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको?
जी सर। क्या आप दिख लिखा हुआ है इसमें स्क्रीन पे? अंजना केसरी। परफेक्ट परफेक्ट। अंजना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अब, तो हमने जब ये पूरे सिस्टम पे कल काम करा था तो हमने सबसे पहले संजना और केसरी को कंबाइंड करा, और उसका हमारा जो बीज मंत्र बना वो बना लक्ष्य अंजन हैरी। मैं लिख देता हूं यहां पे, लक्ष्य अंजन हैरी। ठीक है जी, ये पहला बीज मंत्र हो गया जिसमें कि हम अंजना, मतलब अगर मैं अंजना और केसरी की बात कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली हनुमान जी के पेरेंट्स की बात कर रहा हूं। सो दैट इज एड्रेस। तो मतलब जब सुबह मैंने ये चिन्मय जी और इनके साथ में क्लास शुरू करा, तो द फर्स्ट थिंग आई सेड कि भाई सबसे पहले तो इस बात को देखो कि प्लवमान या हनुमान, तो ये वाला क्लैरिटी हमारा होना चाहिए। जब ये वाला क्लैरिटी हो जाएगा तो सेकंड पार्ट में पूंछ के साथ बिना पूंछ के, तो वो सेकंड क्लैरिटी हो गया कि बिना पूंछ के एनर्जी बढ़ रही थी। फिर तीसरा पार्ट रुद्रावतार या ब्रह्मा अवतार, तो वो ब्रह्मा अवतार का पार्ट आया, तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आप लोग एक दफे देखेंगे तो जितने पॉइंट्स पे हम बात कर रहे थे वो प्रिसाइसली क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ें तो अंजना केसरी इनसे मिलाया तो हमारा ये वाला बीज मंत्र बना। अंजना केसरी और प्लवमान बनाया तो हमारा बीज मंत्र बना लक्ष्य मंजन हव्य प्री। सो ये प्लवमान वाले पार्ट से हमारा सेकंड बीज मंत्र आ गया। तो पहला अंजना केसरी, दूसरा अंजना केसरी प्लवमान, तीसरा बीज मंत्र आया लक्ष्य म पत अंजन हव्यरी। अब इसमें अंजना केसरी प्लवमान और सीताराम आ गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? राइट। अब फोर्थ लेवल पे गए तो हमने अंजना केसरी सीताराम प्लवमान के साथ में जामवंत को जोड़ा, और जामवंत को लिखने का तरीका ज्ञामवंत, और ये जैसे ही मैंने लिखा तो ये मेरा बन गया लक्ष्य म प त अंजन हव्य गिरी। ठीक है जी, ये 1 2 3 और जामवंत के साथ ये 4, फिफ्थ डोमेन ब्रह्मा। तो मैंने ब्रह्मा को इस तरह से लिखा श्ववृक्षमा करके जैसे मैं लिखता हूं, और ये बन गया लक्ष्य म प त अंजन हव्य ज्ञ र, और ऋषि वाला री। ठीक है जी। अब ये मेरी 5 फॉर्म्स हो गई, कौन सी? पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी लवमान। कल जो हमने करा था डिफरेंट अप्रोच से करा था, आज जो कर रहे हैं वो डिफरेंट अप्रोच से कर रहे हैं। मैं पॉइंट बता समझा पा रहा हूं? अब सब लोग इसको स्कैन करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे इसकी एनर्जी को। ये मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूं।
सर एनर्जी बहुत हाई है और गोल्डन और रेड कलर दिखाई दे रहा है। परफेक्ट। अब इसको उठाइए और अपनी सोल सीट में डालिए। सर जी। सर हनुमान जी का विराट स्वरूप खड़ा हुआ है और आधा आधा गोल्डन कलर का आधा रेड कलर का ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जब मैंने इन मंत्रों को एक्चुअली में अपने सोल सीट पे डाला तो विशुद्धि चक्र में और आज्ञा चक्र में बहुत ज्यादा सेंसेशन है। परफेक्ट। तो अब क्या करना है, अपनी अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करने के लिए इससे सब लोग सबसे पहले तो मेरे गले की हीलिंग करेंगे, अपने गले की हीलिंग करेंगे, और अपना जो घर, ऑफिस, बिजनेस प्रेमाइस है उसकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की हीलिंग करेंगे, पंचमुखी प्लवमान के विराट स्वरूप से। सर नॉर्थ वेस्ट बोला है आपने? नॉर्थ वेस्ट। यह सर आपके
हाँ, मच बेटर। कर दिया। परफेक्ट। तो अपने गले को इससे क्लीन करेंगे, अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी को। हम जिस चीज का अपॉर्चुनिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं पर्टेनिंग टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि एयर एलिमेंट से कनेक्टेड है, उस एयर एलिमेंट में प्राण जागृत हो, तो वो प्राण स्वरूप पंचमुखी प्लवमान जी का आवाहन करेंगे। ठीक है। इसमें मैं गायत्री, सावित्री, सरस्वती, महामृत्युंजय, अगर ये जोड़ देता हूं तो भी ये मंत्र जो है एज इट इज रहता है। लास्ट वाला है जी। लास्ट ये वाला होगा ना। ये हाँ, तो ये इसके सारे अल्फाबेट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए जो है ऋषि वाले री के बेसिस पे इट रिमेन्स द सेम। सर मैंने आपको हील किया, आपको कुछ लगा ऐसा? नहीं मैडम, अलग अलग अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। बट मेरा मेरा थ्रोट जो है इज मच बेटर कंपैरेटिव टू स्टार्ट ऑफ द क्लास, उसमें आराम है। ठीक है जी।
तो कल हमने क्या क्या किस किस को इन्वोक करा था? गरुड़, गरुड़, आगे नरसिंह, अग्नि, हैग्रीव, है वराह, वराह भैरव, है जी, शिव, वराह भैरव, वराह, यस यस, वराह, शिव, 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 गणेश। गणेश। नहीं, पहले पंचमुखी पे रहेंगे ना, फिर 11 पे अच्छा जाएंगे। अच्छा अच्छा। पंचमुखी में कौन कौन था? गरुड़, प्लवमान, नरसिंह, प्लवमान हो हैग्रीव, गया सर। प्लवमान तो हो हनुमान गया। और वाराह। गरुड़, नरसिंह, हैग्रीव। हैग्रीव, वराह और प्लवमान। हाँ, तो हैग्रीव के साथ धन्वंतरी जोड़ेंगे। तो अब हमारे पास अल्फाबेट कौन से आ गए? ग, र ऑलरेडी हो गया, उ यानी व हो गया, गरुड़, ड़, नरसिंह का ना हो गया, ऋषि वाला री हो गया, श हो गया, ई की मात्रा ह, ये भी गण, हयग्रीव, ह हो गया, या हो गया, ग हो गया, र हो गया, व हो गया, हयग्रीव हो गया। धन्वंतरी में ध, न हो गया, व हो गया, न हो गया, त हो गया, र हो गया। वाराह में वा, रा, ह। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट बीज मंत्र। लक्ष्य म, प, त, लक्ष्मण, प, त, अंजन, हव्य, ध का जोड़ेंगे, लक्ष्म, पत, ध, अंजन, अंजन, हवय, ज्ञ, अण, रि। लक्ष्मण पथ, धन, लक्ष्मण पथ, ध, अंजन, अवयज्ञ, ये हो गया जी पंचमुखी, पंचमुखी प्लवमान। ठीक है जी, अब इसे फिर से स्कैन करके चेक कर लीजिए। हाँ, है जी। बहुत ज्यादा मतलब 40 40 इंच तो मेरा हाथ ही पकड़ ले रहा है। 40 40 इंच के ज्यादा ही होगा। परफेक्ट।
जी चंद्रशेखर जी, आप कुछ अभी समझ पा रहे हैं? अ, पूरा नहीं सर, मगर देख रहे हैं जितना हो सके आर लेने यू की कोशिश। एबल टू स्कैन द एनर्जी? या आई वाज एबल टू डू, yeah, it came quite big. It was quite profound. It was filled with the ball was filled with energy, तो fiery kind of energy. हाँ, तो ये एनर्जी को उठाना है और अपने गले में डालना है, और आपका जो घर है उसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में डालना है। एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ योर थ्रोट, ऑफ योर Oh, हाउस। okay. करके देखिए। बाकी हम एट लेंथ तो क्लासेस करेंगे ही, बट बी पार्ट ऑफ इट। सर वही विशाल का स्वरूप दिख रहा है, लेकिन इस बार पेक्यूलियर जो चीज थी वो ये है कि रेड और गोल्डन के साथ थोड़ा सा ऑरेंजिश टिंच था। और मुझे ऐसा लगा जैसे उनके कवच, जो मतलब टॉर्सो का जो कवच है, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब मेरे को लगा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिख रहा है। राइट। हम्म। बाकी और किसका क्या ऑब्जर्वेशन है? प्रीति मैडम तो शायद सो ही गई मेरे ख्याल से। सर, आई एम सीइंग रेड कलर, बहुत ज्यादा रेड गोल्ड, और चक्र सारे ही ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज इन दी लंबिकाग्र एंड विशुद्धि। इतनी ज्यादा शक्ति है, एनर्जीज फ्लोइंग थ्रू ऑल द चक्रास। परफेक्ट। सर मैं आपके गले की हीलिंग कर रही थी। मुझे लगता है आप उधर से उठ के इधर ही आ गई थी फिर, जो सर ऐसा हो गया वो तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर। नहीं। सर नहीं, मेरा ऑरेंज। गला बेटर है, मतलब एटलीस्ट 100 टाइम्स बेटर है पहले वाले सिचुएशन के हिसाब से। एंड जी ग्रेटिट्यूड टू ऑल फॉर द हीलिंग। थैंक यू सर। सर ऑरेंज और गोल्डन दिखा है मुझे। हम्म। और एनर्जी मतलब गोल्डन, गोल्डन के साथ वो मिक्स, मतलब ब्राइट, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है। रेडिश नहीं दिखा, ऑरेंजिश सा दिखा है। और एनर्जी बहुत ज्यादा है। मतलब फील हो रही है बहुत हार्ड बॉल हाथों में, और जितना खोल पा रही हूँ हाथ बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गए हैं, मीन्स पीछे तक ले गए हैं। हाँ, तो इसको जो है, जब आप हम जब फाइनल इमेजरी तक जब आएंगे, तब आपको क्या करना है? लिटिल फिंगर, जी बोथ हैंड्स एंड फीट, इसको एनर्जाइज करना है। अपने थ्रोट को
एनर्जाइज करना है अपनी ब्रेथ को। जी। ब्रेथ मतलब नोज टू नेवल, नेवल टू हम्म। नोज, जी उसका सर। अंदर का जो मूवमेंट है उसको एनर्जाइज करना है। जी सर। फिर उसके बाद में थ्रोट हो गया, नोज हो गया, नेवल रीजन हो गया, और हाँ, अपनी स्किन को एनर्जाइज करना है। स्किन से बनने वाले अपने हैंड्स को एनर्जाइज करना है। हैंड से बनने वाले ग्रॉस मोटर स्किल्स को एनर्जाइज करना है। और स्किन से कनेक्ट होने वाले टच एंड फील को एनर्जाइज करना है। फिर इससे बनने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स को एनर्जाइज करना है। लंग से अपने फ्रंटल लोब को एनर्जाइज करना है। फ्रंटल लोब से अपने पूरे बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसको कि एयर एलिमेंट गवर्न करता है, वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ऑब्जर्व करना है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? एयर का जहां जहां रोल है वहां पर वो सिंपल एयर ना होकर वो डिवाइन एयर में कन्वर्ट हो गई है। और वो डिवाइन एयर जो कि राम, शिव, गायत्री, महामृत्युंजय, मतलब जितनी भी डिविनिटी की डोमेन्स हम जानते हैं अवतार के रूप में और बाकी जगह के उसके तौर पे, वो सब उस डिवाइन वायु के अंदर की जो जामवंत वाली फॉर्म है, जो उसको डिवाइन इंटेलिजेंस जनरेट कर रही है, विराट होने में हेल्प कर रही है। अदरवाइज सोचे ना, लंग्स का फंक्शन तो कितना सिंपल सा है, जरा सा चीज को दबाना है, लेकिन वो मेरे सर के कौन से हिस्से के कौन से बाल को फीड कर रही है, मेरे भीतर के वात पित्त कफ को जो फीड कर रहा है, जो ट्रैवल करा रहा है। कॉन्स्टिपेशन हो ना हो इसलिए मेरे शरीर को अधोवायु से वो जो है वो कॉन्स्टिपेशन साफ कर रहा है। मेरे को इनडाइजेस्टेड फूड है, उसको वो उल्टी के माध्यम से शरीर के मुंह से बाहर निकाल रहा है। हर चीज को करने के बाद वो नीट एंड क्लीन सिस्टम को रख रहा है। सो वो एयर ना होकर वो डिवाइन एयर है, और वो डिवाइन एयर में जो विराट काम कर रहा है, फंक्शनिंग उसकी जो है वो इस तरह से चल रही है। इन सब पॉइंट्स को एनर्जाइज करेंगे। अपने जन्मपत्री के शनि को एनर्जाइज करेंगे। शनि का सावर्णी वाला जो कनेक्शन है मनु के रूप में, उसको एनर्जाइज करेंगे। अपने नॉर्थ वेस्ट को एनर्जाइज करेंगे। गायत्री महामृत्युंजय का जो अमृतदायी स्वरूप है उसको एनर्जाइज करेंगे। उस अमृत को शरीर के एक एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
वो आ गई है मेरे को अभी, ये कहाँ से है? जी चंद्रशेखर जी, क्या ऑब्जर्वेशन? Sir, I could find a kind of firmness in the northwest, sir. परफेक्ट। And दिस इज inside in the throat also, I felt some like when we swallow something, something goes inside. And that kind of sensation happened here, and my voice also little changed now. परफेक्ट, परफेक्ट। So that is how we bring change with divinity into our household, what we were discussing in the afternoon. तो उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि वो जिस तरह से टेक्स्ट में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ ओरिजिनल फॉर्म वैसे नहीं है, उसका डिफरेंस है। बट जब हम जो हमारा वास्तु का नॉलेज है उसको इसके साथ क्लब करके जो नया मॉडल बनेगा अमेलगमेटेड, उसकी पावर्स फिनोमिनल होंगी। राइट। जी राजेश जी। So starting from little finger of hand and feet tingling sensation था, nose to navel breath जो है बहुत ज्यादा deep और expanded हो गया, स्किन में फ्रेशनेस है और रेस्पिरेटरी सिस्टम और खुल गया। फ्रंटल में थोड़ा सा सेंसेशन था यहाँ पे फ्रंटल लोब में, और स्पाइनल कॉर्ड का जो टिप है वहां पर जैसा बॉल ऑफ फायर होता है ना, वैसा महसूस हुआ। राइट। इट वॉजंट हॉट, इट वॉज स्लाइटली वार्म टिप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। और हनुमान जी तो है, आई मीन सॉरी प्लवमान जी, ऑरेंजिश रेड, उनके साथ कोई देवी दिखाई दी। अब आई कुडंट हम्म। आइडेंटिफाई विच देवी वाज दैट, बट सम देवी वाज देयर। देखिए ऐसा है कि मेरे रिसर्च मॉडल के हिसाब से जो है, जो प्लवमान जो हैं वो ब्रह्मा जी के अवतार है। ठीक है। ब्रह्मा जी जो हैं और महामृत्युंजय जो हैं, और ये मैं किस निष्कर्ष पे कह रहा हूं, प्लवमान जी की माता जी जो हैं वो अंजना देवी हैं, जिनका मैंने लिखने का तरीका डिफरेंट करा था, संजना करके बनाया था।
तो ये जो अंजना और ये जो मृत्युंजय जो है, इससे मैंने डॉट कनेक्ट करे कि अंजना देवी ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिस जो मतलब अजर अमर है, जिसकी मृत्यु ना हो। तो मृत्यु कैसे नहीं हो सकती, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। बट जो मृत्यु का अधिष्ठाता जो है ब्रह्मा जी, केवल उनकी कृपा से ये पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने जो है वो मृत्यु का निर्माण किया था। तो इसीलिए वो उनका एक टर्म महामृत्युंजय है, और वो जो महामृत्युंजय वाला फॉर्म था उससे इंस्पायर होकर अंजना देवी ने प्लवमान का निर्माण करा। सो विद दैट थॉट इन अप्रोच, ब्रह्मा जी महामृत्युंजय इस फॉर्म के साथ में गायत्री, सावित्री और सरस्वती, ये तीन फॉर्म जो है, मात्र दिखने में तीन है एक। बट हमारे यहाँ क्योंकि कल्चरल इन्वेजन हुआ और शैव वैष्णव युद्ध का बहाना बनाकर किसी ने ब्रह्मा जी वाला पूरा टेक्स्ट जो है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वो कहानी को इस तरीके का स्वरूप दे दिया कि पहले तो राम के साथ कौन थे, बोले जी बंदर और भालू थे राम के साथ, और तो कोई था नहीं। जबकि तुलसीदास जी की ही रामचरितमानस के अंदर हनुमान जी को वानराधीशम बोला गया है। वानराधीशम मतलब क्या हो गया? वन में निवास करने वाले नरों के अधीश। है जी। वानर को लीड करने वाला राणा का राजा। वो वन नर से वानर बने थे ना, तो वनों में जो नरों जो जो आधीश नर टर्म निवास कर जिसकी रहे हम थे। बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम्म। आधीश का मतलब होता है वो जिसकी उपासना करते हैं, राजा नहीं, उनका ईश्वर। तो अब वानर का ईश्वर वानर होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? सो हनुमान जी को जब ये वानराधीशम टर्म यूज हुआ है, तो वो जो है वो डिफरेंट चीज बता रहा है। मतलब कि कुल मिला के जो है, उस टेक्स्ट से ये तो पता चलता है कि उन्होंने जो है वो उस पार्ट को संस्कृत में क्यों लिखा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी इंटेंशन को भी क्लियर कर रहे थे। अब वहां पर हनुमान जी का जो डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसा है, बोले जी मैं तो राम का दास हूं। मैं कौन हूं? हनुमान कौन है भाई? वो जो राम के दास हैं। अब दास जो है वो शादीशुदा अच्छा लगता है या कुंवारा अच्छा लगता है? बोले भाई तो एक ही टाइम पे दो लोगों की नौकरी थोड़ी कर सकता है, एक अपनी पत्नी की और एक मेरी। तो दो जनों की नौकरी नहीं होगी, तो इसके चक्कर में, इसलिए कहीं ना कहीं हनुमान जी को डिस्टॉर्ट करने के चक्कर में उसका मैरिज वाला एस्पेक्ट जो है वो भी डिस्टॉर्ट कर लिया। तो हनुमान जी के साथ कोई ना कोई शक्ति 100% होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। सर उनका विवाह तो सुभद्रा देवी के साथ हुआ था ना। मतलब देर आर डिफरेंट स्टोरीज, बट देर इज नो ऑथेंटिक टेक्स्ट विच सेज कि ये चीज ऐसी है एंड विच इज लार्जली एक्सेप्टेड बाय ऑल। ये नहीं हो पाया, ये वाला पार्ट नहीं हुआ जो स्ट्रक्चर में। अब आते हैं एक आदर्श मुखी पे। 11 5 तो हमने डिफाइन कर लिए, अब 11 पे आते हैं। तो 11 में कौन कौन से फॉर्म है? हमारा। वो तो 5 में आ गए ना, गरुड़ हाँ वाला पाँच और था। उस तरीके से। उनके अलावा गणेश। कौन बन बचे? गणेश भैरव। गणेश, भैरव, और आप कल गूगल से देख के कुछ बता रहे थे ना? एक तो सौम्य स्वरूप और नाग स्वरूप था, तो लेकिन वो सर आपने बताया ना कि मतलब सौम्य और विकराल स्वरूप जो है ये तो, मतलब अब गुस्सा भी आप ही को आएगा और प्यार से बात भी आप ही करोगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी फॉर्म ही चेंज हो गई। आप ही रहोगे हाय ना दोनों जगह। हयग्रीव, नरसिंह, वाराह, शिव, प्लवमान, गणेश, गरुड़, धन्वंतरी, भैरव, यज्ञनी, लक्ष्मण, सूर्य। यज्ञनी,
एक दफे फिर से बोल दीजिए ताकि मैं रिकॉल कर लूं। हयग्रीव, नरसिंह, वाराह, शिव, प्लवमान, गणेश, गरुड़, धन्वंतरी, भैरव, यज्ञनी, लक्ष्मण, शिव। शिव नहीं, सूर्य सूर्य। हाँ, सूर्य तो लिखा ही हुआ था। हाँ। मैंने सबसे पहले सूर्य लिखा था, हाँ लगे हाँ। नहीं। हम्म। सूर्य में ऋषा या ये हो गया, शिव में ये हो गया, गणेश में ग हो चुका है यहाँ पे। गणेश, गणेश में ग ले भी लें अगर हम, चलो। ग, ण, ण ऑलरेडी है, श है। भैरव में भै होता है, श और क्ष का कॉम्बिनेशन, य र व ये हो गया। यज्ञनी हो गया। लक्ष्मण में क्या बचा? कुछ भी नहीं। सो एक ग और जोड़ना है, तो ये ग जोड़ देते हैं अगर हम, तो लक्ष म ण प त ध अंजना लख म गणपत ध अंजन हव्य। आई थिंक ये हो गया। इसमें और कोई नई चीज नहीं है, फिर से लिख देता हूँ। लक्ष्य म गणपत गणपत ध अंजन हव्य ज्ञ। स्कैन करिए अब इसको। अब इसको स्कैन करेंगे तो इसको एक 11 मुखी वाले भाव से ही करेंगे। 11 मुखी, 11 मुखी वाले भाव से ही इसको करेंगे। सूर्य, शिव, गणेश, भैरव, यज्ञनी, लक्ष्मण, ऐसे करके तमाम सबको लेकर।
जी, क्या ऑब्जर्वेशन? और एनर्जी बहुत हाई है और पसीना भी आ गया एकदम से। गुड। अब इस वाली एनर्जी से भी अपने घर के नॉर्थ वेस्ट वेस्ट को, अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के नॉर्थ वेस्ट को, गले को, अपने मेरे ऐसे करके मतलब सब चीजों को हील करेंगे। और जिस तरह से वो पॉइंट्स बोले थे डीपर अपनी बॉडी के अंदर, लिटिल फिंगर दोनों हाथों की, दोनों पैरों की, लाइकवाइज, तो ऐसे करके जो है अपनी कंप्लीट डीप हीलिंग करेंगे सब, अपनी और मेरी, मतलब दैट्स इंक्लूडेड। हेलो। हाँ जी। हैंग हो गया था मेरा फोन, तो मैंने वापस रिज्वाइन किया डिस्कनेक्ट करके। क्या बताया सर आपने? मैंने कहा कि ये इसको स्कैन करके इसकी एनर्जी को नॉर्थ वेस्ट में डालेंगे। आप अपने गले में नॉर्थ वेस्ट में डालिए, और गले में और उन सब चीजों में डालिए। ये 11 दिखाए वो ना? हाँ। जी अर्चना जी, क्या फर्क? सर अभी नहीं कर पा रही हूँ मैं। ओके। पूनम जी। मैंने किया, कुछ फील हुआ है क्या? हाँ, मैं भी वही पूछने वाला था। सर, हाँ आपको जी कुछ सर। फील हुआ है? मेरे को गले में काफी आराम है। नहीं, इस एनर्जी को भी लिफ्ट करके फिर से आपकी हाँ, हीलिंग। फिर से किया। मतलब इन कंपैरिजन टू स्टार्टिंग द क्लास इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। बेटर। हाँ जी सर। तो वो फर्क तो है, खैर उसमें तो देर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड टिपिकली जब मैं इसको नॉर्थ वेस्ट में डाल रहा हूं तो मेरे अपॉर्चुनिटी को ये इम्पैक्ट करेगा। तो ये अब हमारा चिंतन कंप्लीट हो गया, प्लवमान टू, अब ये प्लवमान थ्री हो गई क्लास हमारी। तो इन 3 क्लासेस को करने के बाद जो फाइनल बीज मंत्र आया वो भी मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिया आप लोगों के व्हाट्सएप पर। तो सिंपली उसकी एनर्जी को लिफ्ट करना है और अपने नॉर्थ वेस्ट को क्लीन करना है। एंड डू इट फॉर 43 days सो दैट कि ये एनर्जी स्टेबलाइज होके जागृत हो जाए आपके उसमें। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट
संजीवनी, अमृत, हाँ, ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स को कवर कर लिया जो कोई भी। और इसका जो थॉट जो है वो, मतलब इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट इन टर्म्स ऑफ कि हनुमान जी जिस किसी के साथ भी रहे उसकी लाइफ मीनिंगफुल हो गई। नॉट ओनली हनुमान जी बहुत मीनिंगफुल रहे, मतलब सूर्य के साथ रहे तो सूर्य और हनुमान जी बहुत मीनिंगफुल हो गए। मतलब रामचंद्र जी के साथ रहे तो हनुमान जी मीनिंगफुल हो गए, रामचंद्र जी की लाइफ भी मीनिंगफुल हो गई। सो इन अ वे, अगर मैं इसको बोलूं, मेरे को क्या, किसका फोन था, ये राजेश जी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो जो एक्सपैंड करने के बारे में सोच रही है, तो ये वाली एनर्जी जैसे जैसे हम उठाकर डालते जाएंगे वैसे वैसे वो बिजनेस एक्सपेंशन में हेल्प होगा। मैं पॉइंट समझा पाया? सेल्फ सेल्फ डेवलपमेंट जो है, अब सेल्फ में आप अपने आप को इंडिविजुअल आइडेंटिटी माने चाहे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी माने, बिजनेस की डोमेन माने, कैसे भी माने, वहां पर इस एनर्जी को डालने से, टिपिकली नॉर्थ वेस्ट में डालने से उसका एक्सपेंशन उतना ही बेटर होता जाता है। ठीक है, राइट जी, चंद्रशेखर जी। It was, I think this energy calmed me a lot. Um, I could feel the kind of flaring thing coming out, like colors of copper kind of colors. ओके, Um, it was very robust, very strong energy. I could feel the firmness and slowly the expansion happening gradually, covering the whole space. कवरिंग द होल स्पेस, राइट, परफेक्ट। जी प्रीति मैडम। सर मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई और बहुत ज्यादा एनर्जी जैसे एक्सपेंड होती है, मतलब जब जैसे जैसे मैंने डीप क्लीनिंग करके और डीप हीलिंग की, तो उस तरीके से मतलब मेरे हाथों में जो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन सा रहता है, तो वो सारे जॉइंट्स में मैं फ्री मूवमेंट देख पा रही थी। ट्रांसपोर्टेशन में मुझे थोड़ी स्पीड और थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ, जैसे बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली मतलब फास्ट मूवमेंट होती है किसी चीज की, ऐसा ऐसा लग रहा था। माइंड में जैसे सारे मतलब कुछ सेल्स जैसे कहीं ब्लॉकेज थी और वो ओपन हुई है, ऐसा फील हो रहा था। मणिपुर हम्म। में मुझे सेंसेशन हुई सर, एक आज्ञा चक्र में मुझे सेंसेशन हुई। हम्म। जब हम कपड़े सुखाने के लिए बाहर धूप में डालते हैं हम्म। तो कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा काम करता है? सर एयर और सन, सन करता है सर, हीट। सबसे ज्यादा एयर करता है। जी। सन ठीक है अगर सर। हो और हवा बिल्कुल नहीं चल रही हो तो हाँ कपड़े जी। सूखने में परेशानी होती है, जी। कपड़े नहीं सूखेंगे। जी। ठीक है ना? तो हाँ जी। एयर एलिमेंट का काम होता है सुखाना। अब जो मोटा व्यक्ति है, हम्म। मोटा व्यक्ति के अंदर क्या प्रॉब्लम है? उसका वाटर और एयर मिक्स हो गया। हाँ जी। लखनऊ का नहीं है ना यहाँ पे कोई भी? हाँ, लखनऊ में एक मिठाई मिलती है, उसमें वो क्या करते हैं, वो क्रीम को जो है वो बहुत तेजी से मिक्सी में चला देते हैं, सो मच सो दैट कि वो मिक्सी में वो क्रीम के झाग बन जाते हैं। जी। और वो झाग जो है उसी में वो फ्लेवर और सब मिला के, अब आपने खाई तो इतना बड़ा बर्तन भर के, लेकिन एक्चुअली आपके पेट के अंदर केवल 2 चम्मच गई। तो ऐसे करके एक वो मिठाई होती है, तो उसको, पता नहीं, मेरा नाम मिस कर रहा हूं मैं तो, मक्खन भोग या पता नहीं ऐसा करके कुछ क्या बोलते हैं, मलाई मक्खन या कुछ ऐसी टिपिकल सा नाम था उसका। तो जब मैंने वो उसको देखा तो मुझे समझ में आया कि जो मोटा व्यक्ति है उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका एयर और वाटर एलिमेंट जो है वो मिक्स हो गया। एज अ रिजल्ट उसकी बॉडी जो है वो बल्की लग रही है, पेट ऐसे थुल थुल करके हिल रहा है एंड ऑल दैट।
जब आप इस मंत्र को उठाकर उसके भीतर के एयर एलिमेंट को सुखा देंगे तो फट से उसका इंच लॉस हो जाएगा। मैं मेरा मतलब समझा पाया? जी सर, जी सर। तो हनुमान जी या प्लवमान जी का जो इन्वोकेशन जो है वो वायु का शोषण करता है और वायु को प्राण में कन्वर्ट कर देता है। रोगी, किसी भी जगह का कोई भी रोगी हो, चाहे घर रोगी हो या व्यक्ति रोगी हो, अगर वो रोगी, उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान होगी उसका जो ब्रीदिंग है वो शैलो ब्रीदिंग है। अब जी किसी भी वास्तु पुरुष को अगर देखेंगे तो वास्तु पुरुष में दो डोमेन हो गई, नोज और नेवल। नेवल हो गया सेंटर, नोज हो गया नॉर्थ हाँ, वेस्ट। जी सो नॉर्थ वेस्ट से सेंटर, सेंटर से नॉर्थ वेस्ट, अगर ये कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं दिखती तो उसका मतलब क्या है कि वो घर जो है उसका एयर एलिमेंट प्राण तत्व जनरेट नहीं कर रहा। जब आप अपनी ह्यूमन बॉडी में कंटिन्यूटी चेक करें फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, और वो कंटिन्यूटी नहीं आ रही बढ़िया, इसका मतलब शैलो ब्रीदिंग है। शैलो ब्रीदिंग है मतलब रोगी शरीर है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी। राइट जी, राजेश जी बताइए। सर एक सवाल है। अभी बताइए। जो हम लिख रहे हैं श्रीम, हम्म। ठीक है ना, आपने तो बोला है एनर्जी बहुत फिनोमिनल है, इन्फिनिटी है, और घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। हम्म। अब मेरे हिसाब से आपने दिया है ब्रह्मास्त्र, हम्म। ठीक है। जब तक हम उसे ट्रिगर करना या डायरेक्शन देना नहीं जानेंगे, वो काम कैसे करेगा? ओके। पूछ रहा हूं आपसे, हमें उसके लिए क्या करना है? सिर्फ रख देने से काम चल जाएगा? रख देने से काम चलेगा? इन दी नहीं। फर्स्ट प्लेस चलेगा, उसका रीजन बताता हूं मैं क्या है। हमारे शरीर के दो पार्ट माने गए हैं वेस्टर्न सिस्टम में, एक को कॉन्शियस कहते हैं, एक को अनकॉन्शियस कहते हैं। ठीक है? जो कॉन्शियस है वो हर एक्शन को ऑब्जर्व करता रहेगा। जो अनकॉन्शियस है वो विदाउट ऑब्जर्विंग भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था कि इनिशियली कि ये माथे की स्किन है, आईब्रो पे आ गई तो इसमें बाल उत्पन्न हो गए, हेयर लाइन पे चली गई तो बाल उत्पन्न हो गए, बीच में रही तो बाल उत्पन्न नहीं हुए। तो जब इस तरीके का प्रोसेस हुआ तो इसका मतलब कि देर इज ए डिवाइन प्रोग्रामर इन द प्रोसेस। जब हम ये इंटेलिजेंट एनर्जी जिसको लिफ्ट कर रहे हैं और जिसको प्लेस करने की बात कर रहे हैं, ये हम अनकॉन्शियस डोमेन में कुछ नहीं कर रहे, कॉन्शियस डोमेन में कर रहे हैं। मैंने कॉन्शियसली बीज मंत्र लिखे और मैंने रोज वो बीज मंत्र अपने ईस्ट डायरेक्शन में रख दिए। जैसे ही मैंने अपने ईस्ट डायरेक्शन में उन बीज मंत्रों को रखा, मेरे घर का जो हैप्पीनेस क्वेश्चंट है जो ईस्ट डायरेक्शन से आता है वो इम्प्रोवाइज होना शुरू हो जाएगा। ईस्ट मतलब सनलाइट वहीं से शुरू होती है ना। तो सूर्योदय देखकर जैसे अच्छी सी फीलिंग आती है, सूर्य जैसे जैसे बढ़िया चमकता जाता है वैसे वैसे उस जगह का प्रॉस्पेरिटी, आत्मा की शक्ति, सहस्त्रार चक्र की शक्ति बढ़ती जाती है। तो ऑन दी सेम लाइंस हम हमारे अनकॉन्शियस एफर्ट्स को कॉन्शियस डोमेन में बढ़ाते जा रहे हैं। इन अ वे आई एम पुटिंग श्रीम बीज मंत्र एज द मोस्ट पोटेंट कॉन्शियस फॉर्म into my most potent conscious direction, that is east direction। तो मेरा जो वर्क है प्राइमरली वो कॉन्शियस डोमेन में काम करने के लिए है। अनकॉन्शियस डोमेन का मेरे प्रोग्राम से कोई कनेक्शन नहीं है। अनकॉन्शियस डार्क डोमेन है, मुझे नहीं पता, तो वो डार्क डोमेन मेरे लिए तौरत्रिक के महालक्ष्मी है। उसका इन्वोकेशन करते ही वो डार्क नहीं रहती, इट बिकम्स लाइट, वाइब्रेंट, पोटेंट। तो हमें अपने ऊपर अगर कोई काम करना है, मान लीजिए मेरे को अपना बिहेवियर ठीक करना है, मेरे को अपनी सोच ठीक करनी है, तो मैं अपनी सोच ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही कॉन्शियस एफर्ट कर रहा हूं कि मैं मेरी सोल सीट को इन्वोक कर रहा हूं।
और ये रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि जब जब मेरी सोल सीट से कोई कुछ बोले, तब तब मैं अटेंटिवली उसको सुनूं। दैट्स इट। जितना ज्यादा मैं उस आवाज को सुनने के तौर पे या उस विचार को सुनने और एब्जॉर्ब करने के लिए काम करूंगा, कितना भी जड़ बुद्धि व्यक्ति हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। हमारी जड़ता हमारे फिजिकल और बाकी सारी डोमेन में हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, बट हमारी जड़ता हमारे सहस्त्रार चक्र में कभी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सहस्त्रार चक्र के अंदर ही बीज मंत्रों को रखने के लिए बोला। जैसे जैसे वो घर के वास्तु पुरुष के अंदर जागृत होगा, सहस्त्रार चक्र मतलब ईस्ट डायरेक्शन, तो जैसे जैसे वो जागृत होता जाएगा वैसे वैसे मेरा अनकॉन्शियस डोमेन कॉन्शियसली काम करने लगेगा। हनुमान जी के अंदर जामवंत ने कॉन्शियस डोमेन के फर्क को जागृत करा था। अनकॉन्शियसली तो वो भी आत्मा की डोमेन में थे ना। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम जो है वो सहस्त्रार चक्र, लंबिकाग्र चक्र, इसी डोमेन के डिफरेंस को ही हाईलाइट कर रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इस चीज को कॉन्शियसली ध्यान कर पाता। इट इज लाइक कि मेरा एक दफे अटेंशन जाने अनजाने तौर्य के महालक्ष्मी पे चला गया, तो उसके बाद का काम तो वो खुद ही कर लेगी, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरी पोटेंट इंटेलिजेंस वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। अदरवाइज आप सब लोग जो हैं वो मार्केट में ही उठते बैठते हैं। कभी आपने तौर्य के महालक्ष्मी का नाम भी सुना हो? इसलिए मैंने बोला ये नाम सुनाई पड़ गया, ये अपने आप में दैवी चमत्कार है। इसलिए मैंने बोला कि ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं हमारे अंदर, अगर ये जा रही हैं। अब मुझे पता चला 9-10 साल पहले पता चला मतलब कि कोई चीज एक डिवाइन थी। फिर मैं ये चिन्मय जी के साथ क्लासेस कर रहा था, तब वो तौर तरीके वाले पे हमने रोज मेडिटेशन करना शुरू करा। वी डिड इट फॉर मंथ्स टुगेदर। उसकी सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के तौर पे। उसके बाद फिर आप लोग आए, फिर आप लोगों के साथ डिस्कशन हुआ, ऐसे करके ये आप लोगों तक पहुंच गया। अब आप लोग जड़ हो चेतन हो, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। ये उस डिवाइन की चॉइस थी कि उसने आपको चुना, और उसने आपको चुना तो इसका मतलब कोई ना कोई रीजन होगा। या बाय डिफॉल्ट ये वीडियो जो कोई भी देख रहा हो जिसने कि वो तौरत्र के महालक्ष्मी का पूरा पार्ट सुना हो, जाने अनजाने, इट डजेंट मैटर, बट अगर उसने सुना तो वो डिवाइन डोमेन उससे कनेक्ट ही बना रही थी, बस उतना ही पार्ट था मेरा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अर्चना जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? पूनम जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। हाँ जी सर। हाँ। तो मतलब आप जाने अनजाने कोर्स पूरा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो मर्जी कीजिए, उसने अपने रडार में आपको एड्रेस कर दिया। तो जब आप एक दफे उस प्रोसेस में एड्रेस हो गए, अब अपने आप ही अपना काम होता जाएगा। एंड मेनी टाइम्स इट हैपेंस, हमसे कब किस तरह से गलती होती है हमें नहीं पता चलता, उसका पनिशमेंट होता है वो भी नहीं पता चलता। एक स्टेज ऐसी आती है जब हमें पता चलता है कि यार यार इतना कॉन्शियस पनिशमेंट कैसे चल रहा है, इतना लंबा समय कैसे चल रहा है। तब वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। उससे पहले तो कोई चीज चल ही नहीं रही होती। एंड पनिशमेंट इज इन एवरीथिंग। वो मतलब वो लगता ही है कि पनिशमेंट नहीं है। मुकेश अंबानी के बच्चे जो हैं वो आईवीएफ चिल्ड्रन है, उसके लिए भी एक पनिशमेंट है।
वो बड़े वाला बेटा जो है उसका, उसकी बीमारी पनिशमेंट है। उसको भी तो रियलाइज होता है ना कि अरे यार इतना पैसा है मेरे पास में और मैं एक लाइफ को खड़ा नहीं कर सकता। तो भगवान को तो हर एक को बताना आता है कि भाई तेरा कद कितना बड़ा है। और मैंने तो, क्योंकि एक टाइम था कि मैं ये, जब डेंगू फैलता था ना बड़े एपिडेमिक के जैसा, तो कम से कम 200 लोगों को तो मैंने एक दवाई का कॉम्बिनेशन दिया था। बैद्यनाथ की 3 दवाई थी, उनको खा लो और कैसा भी प्लेटलेट काउंट हो, अगर 10,000 भी प्लेटलेट काउंट है तो वो बढ़ जाएगा। और वो बढ़ के जो है वो 1 सवा लाख पहुंच जाता है। तो अब मैंने वो, और मुश्किल से 1,000 रुपए का आता था उस टाइम पर वो। तो मुझे पता चला ये सुभाष चंद्रा था या जवाहर गोयल था, जो ये जी टीवी के मालिक जो है, इनकी बेटी अपोलो में एडमिट हुई और उसके बाद वो मर गई डेंगू से। तो देर आई रियलाइज्ड कि वो 1,000 रुपए मेहनत की कमाई और 50,000 करोड़ रुपए कोई बराबर बैलेंस में है ही नहीं। हमें लगता है कि ये पूरा प्रोसेस बहुत पावरफुल है, कितना ऐश होगा इस बंदे की जिंदगी में। उस बंदे से पूछो कि हाँ भाई, वो उसकी खुद की कितनी खराब हालत है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये इट इज जस्ट अ परसेप्शन। बट अगर कॉन्शियसली आपने उस डिवाइन डोमेन से अपने आप को कनेक्ट कर लिया एंड यू आर डूइंग रिलीजियसली, टेक माय वर्ड्स, पनिशमेंट की भी एक लिमिट होती है। एक दफे कोई बात चल रही थी, एक कोई स्पिरिटेड एनर्जी का मैटर था। तो वो मेरे लिए किसी ने बोला था कि गुरुजी ये जो है इसके ऊपर तो कोई स्पिरिटेड एनर्जी है। अब बोले है तो है, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें किसी के कंट्रोल में थोड़ी होती हैं। तो बोले नहीं, ये स्पिरिटेड एनर्जी ये कह रही है कि ये तो इसको जो है वो क्या करेगी, वो सड़क पे लाकर छोड़ेगी। तो जैसे वो होता है ना फिनेंशियली पॉपर, जिसके लिए टर्म यूज की जाती है, वैसे करेगी। तो गुरुजी बोले भाई, कोई भी किसी को परमानेंटली फिनेंशियली पॉपर बना ही नहीं सकता। एंड जब उन्होंने ये वाली बात बोली, तब मेरे को डिसाइड हुआ कि नहीं, अगर मैं सोच लूं तो दुनिया की कोई ताकत एक लिमिटेड टाइम तक ही मुझे रोक सकती है। दे कैन नॉट स्टॉप मी फॉर एवर। तो मैंने कहा मैं अपना विजन ही ऐसा करूं और जिस जिसको मैं कनेक्ट करूं उसका विजन ऐसा कर दूं कि वो 115 करोड़ हिंदुओं से कम सोचना ही छोड़ दे। तो जब वो एक थॉट पूरे यूनिवर्सल सेटअप में मूव करना शुरू हो जाएगा कि 115 करोड़ हिंदू, विश्व के समस्त आस्तिक, विश्व के समस्त नास्तिक जो आस्तिक बनने वाले हैं, तब जो चेंज आएगा वो फिनोमिनल पोटेंट चेंज होगा। और हम सब जब इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे, हमारा पनिशमेंट कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि खुशियां जो है वो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से जो है घटता है। तो वो बांटने वाली प्रक्रिया जो है, जितना अच्छा आप उसको समझेंगे, जितना अच्छा उसको यूटिलाइज करेंगे, द लाइफ विल बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। अब आपके शनि का जितना भी पार्ट आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो, जितना भी गले के अंदर हो, जो भी अटक रहा है, आपने उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर चींटियों को जो है बेसन के लड्डू खिलाने शुरू कर दिए और रोज खिलाते रहे। पहले अपने वजन के बराबर, फिर अपना और वाइफ के वजन के बराबर, फिर अपना वाइफ का बेटा, बेटा बेटी उनके वजन के बराबर, फिर पेरेंट्स के, मतलब जैसे फिनेंशियल्स आए वैसे वैसे आप उसको एक्सपैंड करते गए। तो कितना भी शनि एक्यूमुलेटेड होगा वो अपने आप ही रिलीज होता चला जाएगा। और पैरेलली आप जो है ये हाई एनर्जी डालते जा रहे हैं। तो किसी भी रीजन से जो आपकी अपॉर्चुनिटीज की ब्लॉकेज है वो परमानेंटली रह ही नहीं सकती। इट हैज टू ग्रो। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया राजेश जी? राइट।
चलिए, तो मैं डॉक्टर आरती को क्लास हैंड ओवर करता हूँ। गिव मी अ मिनट। हम्म। सिट। Turn this way. सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं मैडम। सब लोग? मैम। Good. जी, स्टार्ट करें। जी। जी, हीलिंग रिक्वेस्ट।
जी डन। Feel the body expanding, including the hands and the fingers of going in different directions, expansion. And even the breath got expanded with peace. Absorbed. Thank you. नमस्कार। बहुत एनर्जी फील हुई है और हाथों में बहुत ज्यादा सेंसेशन थी। गुड एब्जॉर्ब। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी लक्ष्मी मैम। बैक ऑफ द हेड, लंबिकाग्र और रूट चक्र में बहुत एनर्जी फील हो रही। गुड एब्जॉर्ब। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। पूनम मैम, पॉजिटिव लगा, एनर्जीज अच्छी थी, बट जस्ट प्रिकिंग पेन स्टमक में हो रहा था। कोई बात नहीं, एब्जॉर्ब करें आप। जी अभी 2 मिनट में देखिए। जी। जी स्वर्णदीप सर। बहुत अच्छा लगा। गुड बहुत काम वाली चीजें थी। वेरी गुड। एब्जॉर्ब। थैंक यू सर। जी प्रीति मैम। मैम बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, एब्जॉर्ब करें मैम। थैंक यू मैम। जी थैंक यू। जी शुभांगी मैम। Re-energizing, especially in the chakras above the nadi. Thank you, ma'am. जी राजश्री मैम। सॉरी मैम, हीटिंग की वजह से क्लोज आया था तो बंद करो। कोई बात नहीं। मुझे सारे मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र पे सेंस, और आज एयर का सारा एनर्जी ये किया था ना, लीक करके डाला, वो कल है मैम। एब्जॉर्ब करें मैम। थैंक यू। आए तो था, मम्मी को भी ठीक है मैम। थैंक यू मैम। एब्जॉर्ब। थैंक यू। जी अर्चना मैम। अच्छा लगा मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। जी सुनील सर। हाथों के ऊपर अच्छा सेंसेशन लगा और राइट शोल्डर वहां पे अच्छा सेंसेशन लगा और आगे चक्र पे अच्छा सेंसेशन लगा। थैंक यू मैम। एब्जॉर्ब। थैंक यू सर। थैंक यू। सभी को नमस्कार। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।